Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 10th. Okay, so as you know, we are discussing about database management system. In my last video, I discussed the SQL statement. Okay, like data definition language and data manipulation language. In today's video, we are going to discuss how we create a report with the help of select statement. Okay students, so let's get started. So first of all, I need to open my last project. Okay, so for this I need to open my MS Access. Okay, MS Access. Now this is my MS Access 2000, Microsoft Access 2007. Okay, so I'm not going to create a new blank database. Okay, I'm just going to my recent database, and here I did it my database. Okay, this is my previous video databases. So just click it. Now when you click it, you will get this window. Okay, now here you have to double click on your tables, double click on department. Now you will get the record of the department. Okay, so department IDs, department name, cities. Now similarly you have to double click on employee. So here you will get the employee table. Now in the employee table you will get employee IDs, employee name, employee salary, age, and department what? Department ID. This is my foreign key columns. Okay, now see, you can see this department ID 101, 102, 103, 111, 222, 333, 444, 555 are present in my employee table also. 111, 222, 333. Now the record is repeated here. Now in foreign key record will be repeated. हो सकते हैं, no issue, right? But in the primary key there is no repetition. Okay, there is no duplication in primary key column. So this is a big difference between the primary key and the foreign key. Clear student? Okay, so let's get started to create a report with the help of SQL select statement. Okay student, so this is a part of DML statement. Now first of all I need to create a query first. Here double click on the query. Now you will get this type of record, or you can create a new queries also from here, right? Now so this is my query window. Here we are going to write a query. Understood student? So here I am going to write a SQL select statement to make a report. Okay, so this is your last topic of your MS Access database. So let's understand how to write a SQL select statement. Now first of all I'm going to show you the employee table once again. Now in this table, right, the employee ID, employee name, salary, age, department ID column are there, and here all the record present here, right? Now employee ID is my primary key, right, which contains the unique IDs. Okay, which contains the unique ID. Now here, now this is my department table. Okay, so there's a 5 department like HR, sales, IT, admin, marketing, and there are different cities also. Okay beta. Now here this is my query window. Here I'm going to write a query, right? So here with the help of select statement I'm going to create a report. Now first of all, to write a select statement, so first of all you need to write a select, SELECT, select. What you want to select from which table? To select, suppose employee ID. Now that employee name, age. Okay, from. Now where you from to get the record or report? From. For this, from. This is my clause. From is a clause, okay, which comes after ending of this statement. From, and then after that table name. The table name is EMP. Okay beta. So select EID, ENAME, age from employees. So I'm going to get only 3 columns. Now in my employee table, how many columns are there? ID, name, salary, age, department ID. But I'm going to access only ID, name, and age. Okay, so let's see what is my report comes. Select it, and this is my query tool. You have to run it. Simple. Just click on it. Now you will get
the report. Now in this report, now you will get 10 record, okay, and this 10 record you will get how many column? 3 column, id, name and age, which I discuss, which I written here in my query window. Okay, so in query window you will get the reports. Okay, now here if you want to go back in your query window, go to the view, and in the view, the data sheet view, pivot view, pivot chart view, SQL view and design view. Okay, so you have to choose SQL view. Now you will see, select id, name, age from employee. So I'm going to explain you how to write this statement. Now select, what select says, select क्या बताता है हमें? Select the columns, select the record. Okay, now what from says, from which table, from which object you are get the record. Okay, so select tells about the number of columns you are going to selecting, and from says where you are going to, from where you are going to access that record. Okay, it will be a table, it will be a any database object. Okay बच्चों, so here now I'm going to change my column, query column salary, SALA salary, my next column. Again I'm going to write, change my query here and run it again. So here I'm getting a new column here, salary. So id, name, age and salary, means आपको जितने भी column चाहिए you have to put it, okay, and you have to call it like this. Suppose I need only 2 column, id and name, so just remove it here, put the column and separate with comma. Don't forget it to put it comma. Okay बच्चों, ठीक है. Now again execute it. Now you will get id and name. ठीक है. So this select statement we are going to make a report. We are not changing anything. We just weaving our information. We are weaving our data. ठीक है. So don't forget it. SQL view. Okay. Now here, now if I want to access entire column or entire record from the table, instead of writing a separate column name, you just put a symbol star. स्टार का मतलब यहां पे क्या है? ऑल कॉलम. ठीक है बेटा, रिमेंबर इट. स्टार का मतलब यहां पर, या फिर एस्ट्रिक का मतलब ऑल कॉलम से है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जस्ट क्लिक किया, रन किया. नाउ यू विल गेट ऑल द कॉलम फ्रॉम टेबल, आईडी, नेम, सैलरी, एज एंड डिपार्टमेंट आईडी. ठीक है, ऑल द रिकॉर्ड. सी यू आर गेटिंग ऑल द रिकॉर्ड. आई वांट टू मेक अ क्राइटेरिया. ठीक है, आई डोंट वांट इंटायर रिकॉर्ड, आई वांट ओनली सम रिकॉर्ड और सम एम्प्लॉयज रिकॉर्ड. सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. फॉर दिस go to the SQL view. Okay, instead of writing from here, you write where. Select star from employee where. Now employee ID, EID is equal to 101. That's it, nothing else. आपको सारे रिकॉर्ड नहीं देखने, आपको सिर्फ खाली एक रिकॉर्ड देखना, वो किसका? जिसका आईडी 101 है. अगेन रन इट. So you are getting all the record from the employee table, but not all employees, only the employee ID 101. जिसका employee ID क्या है? 101 है. आपको सिर्फ खाली उसके रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं. सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि सिर्फ आपको 101 के चाहिए, 102 के चाहिए, 103 के चाहिए, तो EID 101 लिख दिया, 102 लिख दिया अब यहाँ पे. तो सिर्फ किसका आएगा? 102 का आएगा. अगर इसकी जगह आपको 105 लिखना है तो अब यहाँ पे क्या करें? 105 लिखना है. 105 आ गया. देखा बेटा, अब आप नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कॉलम रिकॉर्ड को. तो आपने यहाँ पे EID की जगह क्या लिखेंगे? E-name. अब E-name की वैल्यू क्या होगी? देखिए E-name की वैल्यू क्या हो सकती है? अमित, सुमित, विजय, रवि, ये सारी वैल्यूज हो सकती है E-name की. ID की तो ये वैल्यूज होगी, E-name की ये वैल्यूज हो जाएंगी. तो आपको क्या करना है? E-name की वैल्यू रख देनी है. क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पे लिख दिया. चलिए हम देखते हैं हमारे पास कोई नाम है, रानी. रन करते हैं क्वेरी टूल में एंड देन रन. तो यू विल गेट ओनली रानी रिकॉर्ड. उसका आईडी क्या? 105 है. ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है,
अंडरस्टूड बेटा? इक्वल टू ऑपरेटर आपको यूज करना है। जैसे आपको इक्वल टू ऑपरेटर और क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ई नेम की जगह हमने यहाँ पे लिखा सैलरी, सैलरी ग्रेटर देन, मैं लिखा 20,000। सैलरी क्या होनी चाहिए? 20,000 से ग्रेटर होनी चाहिए। मीन्स यू आर गोइंग टू एक्सेस ऑल द एम्प्लॉइज रिकॉर्ड बट नॉट ऑल whose salary is greater than 20,000 only। ठीक है, create a query and then run। So here you get how many record here? Now here you can see the 6 record here। Okay, 6 record comes 1 2 3 4 5 6 record, not all 10। Okay, so now this you can see the salary are greater than 20,000। Okay, salary greater than 20,000। now see the employees record। Okay, all salary comes। now there's a 18,000 also, 10,000 also, 15,000 also, but they are not coming। why so? because they are less than 20,000। and your query says what? your query says what? to access the employees record whose salary is greater than 20,000। instead of this you can access only also like 30,000। just run it and you will get only 3 records, 35,000, 35,000 and 40,000, only 3 records। why so? because they are getting more than 30,000। okay beta? now here again go to the SQL view, less than, you can less than or greater than equal to 30,000, greater than या सिर्फ का 30,000। तो अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। रन करते हैं। यस, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 30,000 किसी भी एम्प्लॉय सैलरी नहीं है। आप देख सकते हैं टेबल में जाकर, यहाँ पे देखिए 35 है, 25 है, 10 है, 15 है, 18 है, ठीक है, 35 है, 40, लेकिन 30,000 नहीं है, इसलिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। क्वेरी इज राइट, क्वेरी गलत नहीं है आपकी क्वेरी सही है, लेकिन कोई भी मैच नहीं किया, आपने कोई जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया वो मैच नहीं करी, इसे नहीं है आपके पास। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमको ये देखना है कि हमारे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनका जो डिपार्टमेंट है सेम है। तो हमने यहां पे लिखा वेयर DEID, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी। देखो कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम सही होना, DEID है तो कॉलम का नाम वही रखेंगे आप, DEID। वेयर 101 you sorry 111 you want to know how many employees working in 111 means ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जो कि 111 में वर्किंग हैं। ओके, जस्ट सेलेक्ट इट or not select, just click on tool, query window tool and run it। now there is 4 employees working in 111। okay, name is Sumit, Amit, Shiv and Vivek। now अब यहां पर भी हम क्राइटेरिया लगाएंगे। you have to select all the employees who working in 111 but the salary is greater than 30,000। okay, this is my criteria, but the salary is greater than 30,000। and you have to put and okay, salary is greater than 30,000। तो अब यहां पे मैंने कौन सा ऑपरेटर लगाया, लॉजिकल ऑपरेटर। एंड you want the employees who are working in 111 but the salary getting salary more than 30,000। okay, so let's run करते हैं। yes, only one employee, name is Sumit, who working in 111 but his salary 35,000। okay बेटा, तो इस तरह से आप डिफरेंट क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन गो टू दी SQL व्यू। नाउ इसी तरह से और भी आप कॉलम निकाल सकते हैं। स्टार की जगह आपने सिर्फ खाली एम्प्लॉय का नेम चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, तो EID कॉमा ई नेम, ठीक है, एंड देन सैलरी। यू डोंट वांट ऑल द इंफॉर्मेशन, सैलरी। रन करते हैं, यू विल गो टू 3 कॉलम 3 रिकॉर्ड, so not record 3 column only, record तो only 1 ही है, 101 Sumit and 35,000। तो we are making reports okay with the help of select statement। similarly और भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पे जाइए SQL वे में। ठीक है बेटा, अब या तो सैलरी क्या हो,
डिपार्टमेंट क्या हो 101111 हो, और इस बार हमने क्या लगाया और का मतलब यहाँ पे क्या है कि या तो डिपार्टमेंट उसका 1111 हो या तो सैलरी क्या हो 30,000 ग्रेटर देन हो। तब देखिए क्या आता है रिपोर्ट, और में या तो ये या तो दोनों हो। चलिए रन करते हैं इसको। ये देखिए, अब देखिए, अब आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन जो डिपार्टमेंट क्या है, नहीं बता सकते तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आपको रखना पड़ेगा। चलते रखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सैलरी के बाद डिपार्टमेंट आईडी रख दिया, तो कॉमा DEID, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। लास्ट वाले कॉलम के बाद कॉमा नहीं आएगा। रन करते हैं। अब यहाँ पे देख आगे रिपोर्ट देखिए, 2 एम्प्लॉय हैं जो कि 444 में वर्किंग है। उनका रिकॉर्ड क्यों आया, क्योंकि हमने कंडीशन दिया है कि अगर या तो उनका रिकॉर्ड लेकर आओ जिनकी सैलरी 30,000 से ग्रेटर है, या फिर उनका जो कि 111 में वर्किंग है। तो ये रिकॉर्ड आ रहा है बिकॉज ऑफ इनका जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, इनकी जो सैलरी है 30,000 ग्रेटर है इसलिए आ रही है। और ये ऊपर वाले जो एम्प्लॉई ये क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे आर वर्किंग इन 111 111। ओके, तो इस तरह से भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। ये सारे बेटा मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूं, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं। चलिए वापस हम जाते हैं व्यू में, एसक्यूएल व्यू। क्लियर। तो अब यहां पर एक ही हमने देखा, हमने अब देखिए जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन और इसको क्या बोलते हैं ऑपरेटर। ये क्या होता है, हमारे इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ठीक है। ग्रेटर से हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे हमारा क्या है, क्लॉज है, इसको बोलते हैं क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज। ये दूसरा क्लॉज कौन सा, वेयर क्लॉज, इसको क्या बोलते हैं, वेयर क्लॉज। ये कंडीशंस के लिए होता है, ठीक है। चलिए इसको रिमूव करते हैं, फिर से स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये कॉमन रहेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट करो क्या, ऑल रिकॉर्ड ऑल कॉलम, कहां से, फ्रॉम आएगा, किस टेबल से, टेबल का नाम आएगा, सिंपल। वेयर, इस बार हमने कुछ अलग दिया, वेयर ई नेम लाइक, ई नेम लाइक। अब देखो यहाँ पे नया ऑपरेटर आया है, लाइक लाइक। इस बार हमने परसेंटेज लगाया, सेमीकोलन, और लिखा ए या फिर लिखा आर कैपिटल में, उसके परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या, लाइक ई नेम लाइक, यानी कि उन एम्प्लॉइज का मुझे नाम चाहिए जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये भी क्राइटेरिया है, आर से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करते हैं, रन करते हैं इसको। ये देखिए 2 एम्प्लॉय है जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, रानी एंड राहुल, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसे वो एम्प्लॉय में जाते हैं। अब हमारे ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय जिनका नाम टी से एंड हो रहा है, टी से एंड हो रहा है। चलिए वो भी देखते हैं कैसे होता है। टी से एंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने क्वेरी में जाते हैं, तो जो परसेंटेज साइन पहले बाद लगाया है, ठीक है, उसको पहले लगा देंगे और यहां पे कैपिटल टी लिख देंगे। रन करते हैं तो देखिए अमित, सुमित और निशांत, ये 3 एम्प्लॉय हैं जिनका नेम टी से एंड हो रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे एम्प्लॉइज आए, उनके रिकॉर्ड आने चाहिए। अब देखो स्टार का मतलब सारे कॉलम है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सेलेक्ट स्टार कर दिया है। स्टार का मतलब सारे रिकॉर्ड, यानी सारे कॉलम, नॉट रिकॉर्ड, सारे कॉलम, ठीक है। तो सारे कॉलम आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई टी छोड़ के देख लेते हैं ऐसे कितने एम्प्लॉय जिनके नाम या तो एम से स्टार्ट हो रहे हैं या एम हैं या एम से एंड हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम कहीं पर हो, स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, बीच में कहीं पर, लेकिन एम होना चाहिए, कैपिटल एम हो। तो एम कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमारे कॉलम में जो रिकॉर्ड है वो कैपिटल केस में लिखे गए, इस वजह से हम लिख रहे हैं। अगर आपके कॉलम में स्मॉल केस में तो आपको स्मॉल केस में लिखना, सिंपल, ठीक है। ये मैच करते हैं केस। अब रन करते हैं इसको। जब रन किया तो देखिए कि 2 एम्प्लॉय आए, इनका नाम देखिए एम इसके भी नाम में है, एम है, ठीक है। चलिए और एम्प्लॉय टेबल में देखते हैं कोई ऐसा है। चलिए हम ए देखते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारे एम्प्लॉइज में कहीं पर भी ए हो, चाहे वो बिगिनिंग में हो, चाहे वो मिडिल में हो, चाहे वो एंडिंग में हो, कहीं पर भी हो। हमने ए लिख दिया। रन करते हैं, देखिए कितने नाम आ गए।
अमित में ए जो स्टार्टिंग में है, विजय में ए बीच में आ रहा है, रानी में ए बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ए कैरेक्टर हमारे कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा, ये हमारे रिकॉर्ड आ गए। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसमें वापस से हम क्लिक करते हैं, एसक्यूएल वे पे जाते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हम क्राइटेरिया, हमने कैसे क्राइटेरिया, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम क्या देखने जा रहे हैं, वापस से हम जा रहे हैं क्वेरी में। हमने अगर एसक्यूएल स्टेटमेंट में लिखा, क्या लिखा, देखिए, सेलेक्ट EID, कॉमा, E-name, कॉमा, सैलरी, कॉमा, सैलरी मल्टीप्लाई 12 फ्रॉम EMP। इसका मतलब क्या, अब ये देखो, ये तो कॉलम हमारे पास नहीं है टेबल में, ये कॉलम हमारे पास टेबल में नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करें, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, सैलरी के साथ 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको क्या निकल के आ जाएगा, एनुअल सैलरी एम्प्लॉय की आ जाएगी। चलिए करके देखते हैं, रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, EID कॉलम, EID नेम, EID सॉरी एम्प्लॉय की सैलरी, एंड हियर देयर एनुअल सैलरी। अगर इनकी मंथली सैलरी ये है तो इनकी एनुअल सैलरी ये आ रही है। यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, इसका कॉलम का नाम क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। सो आपने ये भी देखा, हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इनकी एनुअल सैलरी इस तरह से ना आए, HR हो, HRA कैलकुलेट हो, उसमें उसमें उनका TA कैलकुलेट हो, उनका DA कैलकुलेट हो, तो कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जाते हैं अपने क्वेरी विंडो में, एसक्यूएल में। तो सैलरी के बाद हमें सैलरी मल्टीप्लाई, मान लेते हैं सैलरी के साथ हमें क्या करना है, सैलरी मल्टीप्लाई हमारा 10% HRA है, तो हम क्या लिखेंगे, सैलरी प्लस, ठीक है, जो सैलरी हो, सॉरी यहाँ पे हम जाते हैं, तो इस बार हम क्या करते हैं, हम नेम लेते हैं, सिंपल एक कॉलम लेते हैं, E-name, कॉमा, सैलरी, कॉमा। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉलम आएगा वो क्या होगा, सैलरी, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब हमको HR निकालना है, HRA, हाउस रेंट अनाउंसमेंट, तो इसको हम निकालेंगे, 15% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 0.15, ये 15% हो गया। फिर हमारा आता है DA, ठीक है, डिफरिंग अलाउंस। अब DA हमारा में भी 25% निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई 0.25। अब ये सैलरी का हमारा HRA हो गया, DA हो गया। अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं, सैलरी मल्टीप्लाई TA या मेडिकल अलाउंस 0.12, ठीक है, एंड देन फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक। रन करते हैं, तो देखिए हमारा ये तो सैलरी निकला, ये सैलरी का जो 15% हमारा क्या निकला, DA निकला, फिर ये 25% हमारा निकला, सॉरी ये HRA निकला, और ये DA और ये मेडिकल अलाउंस। अब इन सब को ऐड करके एनुअल सैलरी बनानी है, कैसे करेंगे, जाते हैं वापस से, हम इसका मतलब हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम एम्प्लॉय के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, देन आफ्टर द कॉमा करेंगे, क्योंकि हमें एक कॉमा, एक कॉलम और चाहिए। हमने लिखा सैलरी, ठीक है, इन सबको ऐड करना है, SALARY, सैलरी प्लस, क्या ऐड करेंगे, जो हमारा ये निकला, तो इसको हमको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाते हैं, लेट्स सी क्या होता है ब्रैकेट लगाकर, जो हमारी वैल्यू निकली है उसको हम ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कॉपी करते हैं, इसको रन पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर प्लस, आप इस पूरे को कॉपी करके
हमको एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है प्लस नहीं, अब यहाँ पे सैलरी नहीं आएगी। यहाँ पे सैलरी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सैलरी का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सैलरी प्लस हो गया, यही बता रहा हूँ मैं आपको। वापस से कॉपी किया। अब देखिए सैलरी का 0.15 है, इसमें हम क्या कर देंगे 0.25 और इसमें क्या कर देंगे 0.12। तो जो हमारा क्या निकला था, ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। अभी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ खाली एम्प्लॉय की सैलरी एंड देयर एनुअल सैलरी। एम्प्लॉय की सैलरी, तो सेलेक्ट आईडी नेम, ये हमको कॉलम हमको मिल गया। तो सेलेक्ट आईडी, सॉरी सेलेक्ट नेम, सैलरी निकलेगा और फिर उसकी एनुअल सैलरी कैसे निकलेगी? सैलरी में हम क्या हमने ऐड किया, सैलरी का HRA 0.15%, फिर सैलरी का जो DA निकलेगा वो, और फिर इसका मेडिकल अलाउंस ये 12 फ्रॉम एम्प्लॉइज। रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, तो ये एनुअल सैलरी आ गई। नहीं, ये एनुअल सैलरी नहीं है, इसको मतलब कुछ हमने और करना चाहिए। देखिए क्या करते हैं, एक मिनट बेटा। हाँ 25, अच्छा मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारा क्या, ये हमारा क्या निकला, ये 38,000 इसकी मंथली सैलरी निकली कैलकुलेट करने के बाद। अब क्या करेंगे, देखो फिर जाते हैं हम अपने टेबल में, जाते हैं स्क्वेयर व्यू में। यहाँ देखिए हमने क्या किया, सैलरी ऐड कर दी, किसके साथ, क्या निकला ये 15% हमारा क्या निकला HRA, 25% हमारा DA निकला, और सैलरी का 12% क्या निकला, हमारा मेडिकल अलाउंस निकला। इसको हमने ऐड किया, तो ये हमारी मंथली सैलरी हो गई। अब इसका एनुअल सैलरी निकालना है तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 12। अब इसको रन करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई 12 फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, उसके बाद 12 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा और ब्रेक कर देते ताकि आपको और आसानी समझने में। सेलेक्ट सैलरी कॉमा सैलरी, ठीक है, और मल्टीप्लाई फ्रॉम 12, ये इस तरह से कोई लिख दिया हमने ताकि आसानी समझ में आए। देखिए हमने क्या किया, सेलेक्ट ई नेम, फिर सभी को, ये हमारे मंथली सैलरी निकली इससे, और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दिया कैसे 12 से। अब इसको रन करेंगे। ओके क्या सेलेक्ट, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने कॉमन नहीं दिया, सेलेक्ट ई नेम स्पेस नहीं दिया, सेलेक्ट ई नेम सैलरी। रन करते हैं, ये देखिए अब जो सैलरी हमारी निकल के आई है वो हमारी एनुअल सैलरी, ये हमारी सैलरी है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारी एनुअल सैलरी निकल के आई है। लाइक 7 लाख, नहीं 7, इसका ज्यादा आना चाहिए, 71,000 समथिंग कुछ आ रहा है। ओके लेट्स सी, एक मिनट बेटा मैं देखता हूँ कहाँ पे गलती की हमने, क्योंकि इसकी तो 3 लाख से ज्यादा ऊपर आनी चाहिए। एक मिनट, मल्टीप्लाई, इसको हमने ब्रैकेट लगाना है पड़ेगा, ये आएगा ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा एंड देन मल्टीप्लाई होगा। चलिए रन करते हैं वापस से, अब देखते हैं। यस, अब ये हमारी सैलरी सही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4,56,000 समथिंग, 6,48,000 समथिंग, ये एनुअल है, ठीक है, ये सैलरी है, इसके साथ उनका जो HRA DA और मेडिकल अलाउंस ये ऐड हुआ, और फिर जाके तब इसका एनुअल सैलरी कैलकुलेट, ठीक है। तो देखा आपने हमने किस तरह से हम SQL के सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेटा सिंपल आपका क्या था, रिपोर्टिंग जनरेट करने के लिए जो सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो कैसे यूज किया जाता है वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए हर एक टैब में क्या क्या यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि होम टैब में व्यू टैब है, ठीक है ना, व्यू में पाइवेट है, डेट शीट व्यू है, पाइवेट चार्ट है, SQL में डिजाइन व्यू, ठीक है। फिर क्रिएट में भी आपको बहुत टेबल मिल जाएगा, टेबल टेम्पलेट मिल जाएगा, मेनी थिंग्स। एक्सटर्नल डेटा में या अलग पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। डेटा बेस टूल में रिलेशनशिप मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको टेबल डिजाइन कैसे करना वो आपको मैंने बताया था, ठीक है। टेबल में कॉलम कैसे ऐड करते हैं वो मैंने आपको बताया है, रिलेशनशिप कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और SQL स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं
ठीक है, वो मैंने आपको बताया बेटा। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट ये आपका डीएमएल का पार्ट है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, आप रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक। तो इसके पहले हमने आपको डिटेल बताया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें मैंने बताया कि कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बताया। फिर डीएमएल स्टेटमेंट में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, ठीक है, इंसर्ट डिलीट अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इंसर्ट का मतलब नया रिकॉर्ड एंटर करना, अपडेट का मतलब यहाँ रिकॉर्ड में मॉडिफाई करना, ठीक है, और डिलीट का मतलब किसी रिकॉर्ड को रिमूव कर देना। जैसे कि सिंपल स्टेटमेंट हमारा एम्प्लॉय में, आप किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को रिमूव करना चाहते हैं तो डिलीट स्टेटमेंट आता है, जो कि आपको यहाँ लिख सकते हैं। सिंपल कैसे लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब सबको तो नहीं करना है, वेयर EID इज इक्वल टू, आपने कुछ भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पर आईडी का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं हमको राहुल, यानी कि 110 का जो रिकॉर्ड है उसको रिमूव करना है, तो वेयर 110 ये आपने लिखा और क्वेरी को इंप्लीमेंट किया क्वेरी विंडो में जाकर, ठीक है, सॉरी रन करते हैं, यहाँ पे रन पे क्लिक किया, एम्प्लॉय टेबल 110 इज गॉन, राइट, 110 इज नॉट देयर, यू कैन सी सिंपल बेटा। यहाँ पे देखिए 110 हमारा जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। हमने टेबल में क्या लिखा था, क्वेरी में क्या लिखा हमने, सिंपल हम व्यू में जाते हैं, एसक्यूएल व्यू में जाते हैं, तो हमने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID इज इक्वल टू 110। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने डिलीट स्टेटमेंट भी देखे बेटा। सो I hope you understand. Okay, so thank you student for watching it.